Hello everyone, this is Yuvraj Gurjar and today we'll see sources and sink. Okay, so this is in fact important topic. इससे I think 2019 में भी क्वेश्चन आया. Okay, and it is very easy as well. Okay, जो हमने इससे पहले स्ट्रीम फंक्शंस, कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल, ऑल दोज स्टफ्स जो भी हमने पढ़ा है उसी का इसमें यूज है. बस इसमें क्या है, सोर्स एंड सिंक, बस ये दो कॉन्सेप्ट का इंट्रोडक्शन है. ओके, so first let us define what is source. So what is source? Okay, let us say कि this is a fluid flow in two dimension. Okay, let us say this is x axis and this is y axis. Okay, so here the fluid is flowing. Okay, so basically fluid जो होगा उसकी x direction में velocity u होगी and y direction में v होगी. Means whatever be the direction of fluid flow, let us say this is the direction of fluid flow, then we can always basically resolve the component of q in x and y direction. Okay, so let us say कि x direction में the component is u and y direction में the component is v. Okay, so basically if we put a source here, let us say there is this source. What will source do? As the name suggests, source will generate fluid. Means there will be flow of fluid out of it in all direction symmetrically, uniformly, radially. Okay, so when we put a fluid in two dimension, ठीक है, in a flow where the flow is two dimensional, so जो डिस्ट्रीब्यूशन और जनरेशन ऑफ फ्लूइड जो होगा सोर्स के थ्रू वो रेडियल डायरेक्शन में होगा, यूनिफॉर्म होगा. ठीक है, सो अगर ये मान लो ये जो लेंथ है ये आर है, सो एक आर रेडियस की जो सर्कल होगा उसकी जो सरकमफ्रेंस होगी वो उस फ्लूइड का इंटरफेस बनेगी. ओके, सो सोर्स मीन्स source generates fluid in radial direction uniformly. Okay, so that is source. Sink will be just opposite of it. What will happen that in sink basically the fluid will be consumed. ठीक है, and the same thing, the only the direction will reverse. Here the fluid will be consumed and again the flow will be in radial direction. Okay, so let us say that let m be the strength of source. Okay, strength means the measure, strength is measure of how much fluid is being generated by the source or how much fluid is being consumed by the sink per unit time. Okay, means so this strength if we denote that by m. So see, हमने देखा था फ्लक्स. व्हाट इज फ्लक्स? अगर मान लो कोई एरिया है उसके थ्रू हम फ्लक्स को देख रहे थे. अगर एरिया है तो उसमें जो नॉर्मल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्यू एन है, देन एंड मान लो फ्लूइड की जो डेंसिटी है वो रो है, देन रो टाइम्स वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल. ओके, एंड एरिया ऑफ दैट, लेट अस से एरिया ए है इसका, दिस गिव्स द फ्लक्स थ्रू एन एरिया. ठीक है, बट बिकॉज वी आर सीइंग कि जो यहाँ फ्लूइड फ्लो है वो टू डिमेंशन है. ठीक है, तो इन टू डिमेंशन, अब जैसे अगर इस सोर्स की बात की जाए तो सोर्स जो है, मान लो ये सोर्स यहाँ पे रखा हुआ है, इससे डिस्टेंस आर पे देखा जाए तो ये जो आर रेडियस का सर्कल बन रहा है इसके थ्रू है ऐसे फ्लूइड पास हो रहा है. ठीक है, सो यहाँ पे जो है बेसिकली ये जो कर्व है, मान लो ये जो रेडियस आर है देन, और ये 0 0 पे मान लो सोर्स रखा है, देन दिस कर्व कैन बी गिवन बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर. सो जो जो कर्व आर स्क्वायर, ये लेंथ आर पे जो ये सरकमफ्रेंस है सर्कल की, यही से फ्लूइड पास हो रहा है. तो बेसिकली देखा जाए तो दिस इज एन लेंथ. ठीक है, तो इसमें फ्लक्स थ्रू लेंथ क्या होगा? फ्लक्स थ्रू लेंथ ऑफ द कर्व दैट विल बी लेंथ जो है ये एल विल बी एल इक्वल्स टू 2 पाई आर. मीन्स जो लेंथ है ये जो सरकमफ्रेंस है, अगर रेडियस आर है तो इसकी जो बेसिकली मेजरमेंट होगा वो 2 पाई आर होगा इनटू वेलोसिटी. So that will give the basically flow of fluid through this per unit time. ठीक है, और in terms of strength
Okay. If strength of source is m, then fluid flow in unit time due to it, fluid flow और fluid generation, ठीक है, is given by 2 pi m. Okay, if m is strength, then 2 pi m gives the measure of fluid flow through this basically this length where it is 2 pi r, because the flow will be symmetrical, ठीक है. Further, this will be equals to what? This will be equals to 2 pi r into qr. Okay, so what we have, that 2 pi m is equals to 2 pi r qr. So from here what we can say that 2 pi से 2 pi cancel हो गया, qr is m by r. Okay, so यहाँ पे जो रेडियल डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी फ्लूइड की, दैट विल बी m by r. दिस इज इम्पोर्टेंट. अच्छा, इसमें ये चीज भी इम्पोर्टेंट है कि ये जो है, दिस इज फॉर टू डिमेंशनल फ्लो, ठीक है. 2016 में क्वेश्चन आया है, उसमें जो फ्लो है वो 3 डिमेंशनल है, ठीक है. तो अगर विल यूज दिस फॉर्मूला देन वो रॉन्ग हो जाएगा. आई विल डिस्कस कि 3 डिमेंशनल में क्यू आर विल नॉट बी m by r. दिस इज ओनली इन 2 dimension. Okay, let us say this is the source, and then let us say this is distance r, then here the velocity will in radial direction, in this direction will be given by m by r if this is source of m strength. Okay, when we say that strength is m for source, then plus m, and for sink the strength is m means minus m. Okay, because this is consuming the fluid, ठीक है. सो ये है. अच्छा, अब देखो, अगर इफ वी वांट टू नो कि जो है स्ट्रीमलाइन की इक्वेशन क्या होगी इस केस में, कि वी नो कि कोई भी इररोटेशनल फ्लूइड है उसमें क्यू वेक्टर इज ग्रेडियंट ऑफ माइनस ग्रेडियंट ऑफ 5, एंड फर्दर वी नो दैट जो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल होता है दैट इज 5 प्लस आयोटा साई. सो बिकॉज यहाँ पे जो W है ये एनालिटिक फंक्शन है, सो सी आर इक्वेशन ओबे होगी. इसका मतलब क्या होगा कि डेल फाई ओवर डेल आर विल बी डेल साई ओवर आर डेल थीटा, ठीक है. अब रेडियल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी दैट इज गिवन बाय माइनस डेल फाई ओवर डेल आर. सो दिस विल बी माइनस डेल फाई ओवर डेल आर इज डेल साई आर डेल थीटा. सो दिस इज क्यू आर, ठीक है. सो बट क्यू आर इज m by r here, so this will be minus del psi over r del theta. Or from this what we can say that del psi over del theta is minus m. Or from this we can say that psi is minus m theta plus some constant can be ignored, क्योंकि जो psi है, psi equals to c जो है वो हमें क्या that gives us streamline. So constant को we can ignore, ठीक है. ओके, सो दिस इज psi. अगर ऐसे फाई की कैलकुलेशन हम करें तो फाई क्या आएगा, देखो डेल फाई ओवर डेल आर इज दिस इज माइनस क्यू आर इज माइनस डेल फाई ओवर डेल आर, दैट इज माइनस m by r. और वी कैन से दैट फाई इज माइनस m इंटीग्रेशन डी आर ओवर आई प्लस सम कांस्टेंट में भी इन टर्म्स ऑफ थीटा, ठीक है. सो देखो इसमें दिस फाई कैन बी गिवन एज माइनस m log r. ओके, सो एंड कांस्टेंट कैन बी इग्नोर्ड, ठीक है. सो वी हैव फाई इज दिस एंड साई जो है हमारे पास वो है m थीटा. सी आ गया हमारे पास, ठीक है. सो अगर इसमें ये पूछा जाए कि एक सोर्स है, ठीक है, इन 2 डायमेंशन फ्लो में एक सोर्स है, ठीक है, तो उसकी वजह से जो स्ट्रीमलाइन बनेगी उनकी इक्वेशन क्या होगी. तो स्ट्रीमलाइन क्या होगी, स्ट्रीमलाइन इज साई इज सम कांस्टेंट. यहाँ पे साई क्या है, m थीटा इक्वल्स टू c कर देंगे, और थीटा इक्वल्स टू c मीन्स थीटा विल बी कांस्टेंट, ठीक है. सो ये क्या होगी, ये एक स्ट्रेट लाइन होगी. वो समझ में भी आ रहा है, ऐसा फ्लो हो रहा है. सो थीटा मान लो ये थीटा है, सो ये थीटा अगर कांस्टेंट कर दिया जाए तो ये एक लाइन बनेगी. सो दैट विल बी द स्ट्रीम लाइन. पर बिकॉज दिस सी जो है ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, मीन्स कांस्टेंट की भी वेरियस वैल्यू हो सकती है, ठीक है. सो हर थीटा पे एक फिक्स सी होगा इस टाइप से. सो इस टाइप से ये सब जो है इसकी स्ट्रीम लाइन बनेगी, और आउटवर्ड डायरेक्शन में इसको फ्लो शो कर रहा है बिकॉज दिस इज अ सोर्स,
ठीक है, तो जनरेशन ऑफ फ्लूइड हो रहा है यहाँ पे। तो आई होप ये समझ में आता है। वैसे इसमें पूछा जाए कि इक्वी वेलोसिटी पोटेंशियल, पोटेंशियल सरफेस या पोटेंशियल लाइन क्या है, तो पोटेंशियल लाइन किससे गिवन होती है, फाई इक्वल्स टू सी, फाई इसमें लोग आर है, एम माइनस एम लोग आर, उसको कांस्टेंट कर दो और इससे यू कैन से दैट आर इज कांस्टेंट। आर कांस्टेंट का क्या मतलब हो गया, आर इज कांस्टेंट, इसका मतलब तो सर्कल हो गया। सो ये रेडियस आर है, यहाँ पे एक कांस्टेंट रहेगी थ्रू आउट। ऐसे ही अगर डिफरेंट डिफरेंट आर लेंगे तो उस पर दूसरा कांस्टेंट आएगा। सो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स जो होंगी, सो पोटेंशियल लाइंस क्या होगी इसमें, पोटेंशियल लाइंस आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है। एंड स्ट्रीम लाइंस क्या होगी, स्ट्रीम लाइंस आर दिस लाइंस या फैमिली ऑफ लाइंस, फैमिली ऑफ लाइंस passing through origin, passing through 0,0 because the source is at 0,0, ठीक है। सो आई होप ये समझ में आता है, बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब इसमें अगर इफ कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल ड्यू टू अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ एम, ये क्या होगा, कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल इज गिवन बाई फाई प्लस आयोटा साई, फाई जो है माइनस एम लोग आर, ये हमने कैलकुलेट किया, एंड साई इज माइनस एम थीटा, सो दिस इज एम थीटा, और वी कैन टेक माइनस एम आउट, दिस इज log r प्लस आयोटा थीटा, ठीक है। और इसको वी कैन राइट m log r प्लस log e की पावर आयोटा थीटा, ऐसा ऐसा लिख सकते हैं आयोटा थीटा को, बिकॉज log एंड e दो दे आर मिस, ये तो 1 हो जाएगा बेसिकली, आयोटा थीटा बाहर आ जाएगा, log e इज 1, ठीक है। और इसको वी कैन से माइनस m log r e रेज टू आयोटा थीटा, सो दिस इज w, ओके। फर्दर इसको वी कैन राइट, अच्छा जो z है that can be written as r e raised to iota theta, this is the Euler form of this, right, complex number को Euler form में we can write like this, so this is minus m log z, this is w, okay। so देखो ये जो सोर्स था हमारे पास प्लस m स्ट्रेंथ का, इससे r डिस्टेंस पे, ये मान लो x एक्सिस है, और इससे थीटा एंगल पे यहाँ पे जो पॉइंट है p, उसका कोऑर्डिनेट अगर z है, then this z will be given by r e raised to iota theta, ठीक है। सो इस z पे ड्यू टू दिस सोर्स जो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल होगा वो ये होगा, ओके। ये समझ में आता है, पर ये तब है जब यहाँ पे ओरिजिन है, ओके। अगर हमारा मान लो ये जो है सोर्स जो है वो मान लो किसी जेड नोड पॉइंट पे है, और उसकी वजह से किसी पॉइंट पी जेड पे हमें अगर पोटेंशियल ये कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल देखना है, तो सिंपली इसमें जो जेड है उसकी जगह जेड माइनस जेड नोड हो जाएगा, क्योंकि जो लेंथ आर है वो आर क्या होगी फिर, मॉडुलस जेड माइनस जेड नोड होगी, बस दैट्स द डिफरेंस, ओके। सो ये फॉर्मूला हमें याद रहे तो अच्छा है, वैसे प्रोसेस बड़ा सिंपल है, याद ना रहे तो भी हम इसको कर सकते हैं तुरंत, ठीक है। सो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल ड्यू टू अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ m which is located at point z node is given by minus m log z minus z node, so this is the complex potential, okay। सो आई होप समझ में आता है। और इसमें अगर बात की जाए फाई की वेलोसिटी पोटेंशियल की, तो वो क्या है, माइनस एम लोग आर है, आर यहाँ पे मॉडुलस जेड माइनस जेड नॉट हो जाएगा, और साई माइनस एम थीटा, ठीक। थीटा इज बेसिकली जो ये जो इसकी या रेडियस वेक्टर है कर रहा है ये, सो बेसिकली जो एंगल ये रेडियस इससे एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रही है, दैट विल गिव द साई, दैट इज स्ट्रीम फंक्शन, ठीक है। सो ये आई होप समझ में आता है, ठीक है। ये हो गया बेसिकली सोर्स के लिए। अगर सिंक की बात की जाए, सिंक तो उसकी स्ट्रेंथ माइनस एम हो जाएगी, एवरीथिंग विल बी सेम, बस ये एम है वहाँ माइनस एम हो जाएगा, तो ये प्लस एम हो जाएगा, लो जेड माइनस जेड नो, ओके। ड्यू टू सिंक जो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल होगा, ठीक है, सिंक लोकेटेड एट जेड नो विल बी दिस, ओके। सो आई होप ये समझ में आता है, ठीक है। अब इससे ही रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट है, ठीक है।
अच्छा, ये जो हमने देखा ये 2 डिमेंशन में, अगर सेम चीज अगर 3 डिमेंशन में हो, 3 डिमेंशनल फ्लो, ठीक है, दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट बिकॉज 2016 में क्वेश्चन आया है इस पे, ठीक है, विल डिस्कस दैट क्वेश्चन, ठीक है। 3D फ्लो है तब क्या होगा कि जब ये सोर्स है, ये हमारा सोर्स है, अभी जो फ्लो था वो सिर्फ एक्स वाई प्लेन में ही रेस्ट्रिक्टेड था, मीन सेम प्लेन में था बिकॉज 2 डिमेंशनल फ्लो था। अभी क्या होगा कि जो फ्लो है वो रेडियली होगा, सोर्स की बाय डेफिनेशन वी कैन से, मान लो इसकी स्ट्रेंथ एम है, ठीक है, तो दिस टाइम द फ्लो की जो बाउंड्री होगी दैट विल बी द सरफेस ऑफ ए स्फीयर, मान लो दिस डिस्टेंस इज आर, देन सरफेस ऑफ अ स्फीयर विद रेडियस आर, ठीक है, विल बी द इंटरफेस of fluid flow due to source of strength m, ठीक है, following a 3D fluid flow, ठीक है, ओके। अगर 3D फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो जो है सरफेस जो होगा, इंटरफेस जो होगा वो एक सरफेस होगा स्पेयर का, बिकॉज एक्स वाई एंड जेड ऑल डायरेक्शन हो रहा है। अगर इफ वी टेक आर थीटा फाई, इफ वी टॉक इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो रेडियल डायरेक्शन में पूरा मूवमेंट हो रहा है। सो इसमें जो स्ट्रेंथ है बेसिकली इसकी, या जो फ्लूइड जनरेशन है दैट इज गिवन बाय 4 पाई एम, जैसे वो फॉर 2D दैट वाज गिवन बाय 2 पाई एम, ठीक है, फॉर 3D इट इज गिवन बाय 4 पाई एम, वेयर एम इज स्ट्रेंथ ऑफ सोर्स। दिस शुड बी इक्वल्स टू फ्लक्स, क्या होगा इसमें पर यूनिट टाइम में क्या फ्लो हो रहा होगा इसके थ्रू, जो एरिया है, सो दैट विल बी एरिया दैट इज 4 पाई r स्क्वायर, एरिया ऑफ द स्फीयर इनटू वेलोसिटी इन रेडियल डायरेक्शन, सो क्यू आर, ठीक है, दैट इज क्यू आर। सो फ्रॉम दिस व्हाट वी कैन से दैट क्यू आर इज m divided by r square, okay, so this will be the radial velocity due to a source of strength m in 3D flow. So इसमें अब if we can see qr can be written as minus del phi over del r, okay, so from that we can say that minus del phi del r is m by r square, or phi will be m by r, okay, so this will be the velocity potential, ठीक है। Let us see a related concept, dipole or doublet, okay, this is consists of source and sink of equal strength placed very near to each other, okay, so basically we have a source, let us say that is of strength m, source is put here, and a sink which is of strength minus m is put here, so the distance between them is very small, basically del s tends to 0. Further it is also a condition that this m should be very large, basically compared to delta s, m should be very large, like if delta s is 1 meter, then the strength है that should be 10 raised to 7 or something of that sort, okay, so then what will happen that m del s, if we multiply m by del s, then that will come out to be a finite quantity, okay, finite कैसे आएगी, because m is approaching towards infinity and del s towards 0, so this is 0 by 0 form, ठीक है, which may get a finite value to us, ठीक है, so that's why m del s जो होगा इसकी एक finite value होगी, उसको let us call denote by mu, so this mu is known as strength of dipole, strength of doublet और dipole, ठीक है। अब देखो, अब हमें जैसे सोर्स की वजह से जो था कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल, सोर्स की वजह से क्या आया था, माइनस एम log z माइनस जेड नॉट, ओके, इफ सोर्स इज केप्ट एट जेड नॉट पॉइंट, तो ऐसे ही डबलेट की वजह से सोर्स कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल क्या होगा ये हमें डिस्कस करना है, ठीक है। सो लेट अस से कि दिस इज प्लस एम, दिस इज माइनस एम, दिस इज सिंक, दिस इज सोर्स, और मान लो ये कोई पॉइंट है यहाँ पे,
दिस इज सम पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट मान लो Z है. Let us say this angle is theta and this length is r and this length is del s, which is very small. So as this is very small, so we can treat this also r plus some del r. ठीक है. So अगर इसमें अब कोसाइन रूल लगाया जाए, cos थीटा क्या होता है? कोई भी ट्राइंगल है ये मान लो ए बी सी, देन cos a is given by b square plus c square minus a square divided by 2bc. ठीक है. जो सामने वाली साइड है उसका स्क्वायर माइनस होगा. ठीक है. सो यहाँ पे cos थीटा क्या हो जाएगा? cos थीटा विल बी r स्क्वायर प्लस डेल s का स्क्वायर माइनस r प्लस डेल r का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 r डेल s. ओके, ऐसा बोल सकते हैं. और इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई किया जाए, इसको और इसको देखा जाए तो a प्लस बी, a माइनस बी किया जाए, सो माइनस डेल r एंड प्लस क्या आएगा 2r प्लस डेल r प्लस डेल s स्क्वायर डिवाइड बाई 2r डेल s. ऐसा बोल सकते हैं. ओके. अच्छा, फर्दर इसको अगर थोड़ा और ओपन कर दिया जाए तो माइनस 2r डेल r माइनस डेल r का स्क्वायर प्लस डेल s का स्क्वायर डिवाइड बाई 2r डेल s. ऐसा बोल सकते हैं. बिकॉज डेल r इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स जीरो, तो इसका जो हायर ऑर्डर है उसको तो हम वैसे भी नेग्लेक्ट कर सकते हैं. सो दिस कैन बी नेग्लेक्टेड, इसको भी वी कैन नेग्लेक्ट. अब इसमें देखा जाए तो दिस इज माइनस डेल r ओवर डेल s, सो दिस इज cos थीटा. ठीक है. सो हमारे पास ये आ गई, ये हमारे लिए यूजफुल है. cos थीटा आ गया माइनस डेल r ओवर डेल s. ठीक है. अब देखो, अच्छा अब अगर वेलोसिटी पोटेंशियल देखा जाए, वेलोसिटी पोटेंशियल ड्यू टू डबलेट. ठीक है. डबलेट मीन्स सोर्स एट दिस पॉइंट, लेट अस कॉल दिस ए एंड बी. सोर्स एट ए एंड सिंक एट बी. वी नो कि जो अभी हमने देखा डिस्कस किया कि फाई क्या होता है किसी भी सोर्स की वजह से, दैट इज माइनस एम log r ln r. ठीक है. सो माइनस एम इसके लिए आएगा ln r, और ये जो है बिकॉज दिस इज सिंक, सो m की जगह माइनस एम हो जाएगा, तो प्लस एम ln r प्लस डेल r. और इसको वी कैन राइट m ln r प्लस डेल r डिवाइड बाई r, और दिस इज m. अच्छा, और ओके, इसको वी कैन राइट m ln 1 प्लस डेल r बाई r. ठीक है. और फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ x 1 प्लस x can be approximated to x for x tends to 0. Okay, so this can be approximated to del r by r, right? This is phi. So m, अब देखो del r क्या है? del r हमने अभी cos थीटा क्या निकाला? cos थीटा, from here we can say that cos थीटा is और cos थीटा into del s is minus del r, ऐसा लिख सकते हैं. So del r को we can write minus del s cos थीटा डिवाइड बाई r, और फाई कैन बी रिटन एज माइनस m डेल s cos थीटा डिवाइड बाई r. ठीक है. और ये जो है इसको तो हमने स्ट्रेंथ बोला है डबलेट की, बाई वी डिनोट दिस बाई म्यू, सो दिस कैन बी रिटन एज माइनस म्यू cos थीटा बाई r. सो दिस इज आवर फाई. सो वेलोसिटी पोटेंशियल ड्यू टू दिस डबलेट. ठीक है. नाउ वी कैन कैलकुलेट स्ट्रीम फंक्शन फॉर दिस, राइट? स्ट्रीम फंक्शन कैसे होगा? अगेन वी नो दैट कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल जो होता है W कैन बी रिटन एज फाई प्लस आयोटा साई. सो यहाँ से वी कैन से दैट जो डेल साई ओवर डेल थीटा होगा दैट विल बी इक्वल्स टू डेल फाई ओवर डेल आर, राइट? बाय द कोची-रीमन इक्वेशन, ये हमने डिस्कस किया था. सो नाउ डेल फाई ओवर डेल आर कैन बी रिटन फ्रॉम हियर, दैट विल बी म्यू बाय आर स्क्वायर cos थीटा. सो यहाँ से वी कैन से दैट डेल साई ओवर डेल थीटा इज म्यू डिवाइड बाय आर cos थीटा. और अगर इसको इंटीग्रेट किया जाए विद रिस्पेक्ट टू थीटा, एंड दिस इज म्यू साइन थीटा बाय आर प्लस सम कांस्टेंट व्हिच मे बी फंक्शन ऑफ लेट अस से आर. ठीक है. बट दिस जी आर विल कम आउट टू बी जीरो. दूसरी कोची-रीमन इक्वेशन यूज करेंगे हम, तो दिस विल कम आउट टू बी जी आर डैश विल बी जीरो, सो दिस विल बी सम कांस्टेंट. ठीक है. सो जो यहाँ पे हमारे पास स्ट्रिंग फंक्शन आ रहा है, दिस इज म्यू साइन थीटा बाई आर. ठीक है. सो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल जो होगा W, that is phi plus iota psi. So phi क्या है हमारे पास? Where is phi? Phi is minus mu cos theta, I think.
minus mu cos theta by r minus mu cos theta by r plus iota psi is mu sin theta by r. Okay, so again this can be written as mu by r can be taken common, minus cos theta minus iota sin theta. Okay, or this can be written as mu by r. Okay, this is nothing but e raised to iota theta. E raised to iota theta is nothing but cos theta plus iota sin theta. सो अगर इसको दोनों तरफ से कंजुगेट लिया जाए तो माइनस आयोटा थीटा विल बी कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, राइट? ये तो आइलर फॉर्म है, सो दिस कैन बी रिटन एज माइनस आयोटा थीटा, और वी कैन से माइनस म्यू डिवाइड बाय आर, इसको नीचे ले जा सकते हैं e की पावर आयोटा थीटा, सो माइनस म्यू बाई आर ई रेज टू आयोटा थीटा क्या है, दिस इज नथिंग बट कोऑर्डिनेट जेड, कोऑर्डिनेट ऑफ पी, सो माइनस म्यू बाई जेड. ओके, सो अच्छा देखो हमने जो कॉन्फ़िगरेशन लिया था वो इस टाइप था, यहाँ पे प्लस एम था, यहाँ माइनस एम था, सो इसकी वजह से जो यहाँ पे हमारे पास कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल आया है वो माइनस म्यू बाई जेड है. पर जनरली जो ज़्यादातर बुक्स है व्हाट दे डू, वो क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस एम रहता है और यहाँ पे मीन्स इस पॉइंट पे सिंक है, यहाँ पे सोर्स है, सो ड्यू टू दैट if again this will be r plus del r, if we derive the expression, so जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल आएगा that will be mu by z, क्योंकि हमने रिवर्स कर दिया ऑब्वियसली डायरेक्शन. ठीक है, सो वी कैन से, सो जनरली व्हेन वी टॉक अबाउट अ डाइपोल तो माइनस एम एंड एम ऐसे लेंगे हम, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा, दैट इज व्हाट स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक टेक इट. ओके, सो this what we can say that complex potential due to a doublet of strength m is mu by z. This is when the doublet is at origin, है ना, when doublet is at 0 0. ठीक है, अच्छा जैसे हमने सोर्स के लिए देखा था, मान लो ये जो हमारी डबलेट है दैट इज माइनस एम टू एम, इस टाइप का ओरिएंटेशन लेंगे. ठीक है, मान लो दिस डबलेट्स एक्सिस ऑफ डबलेट इज बेसिकली द लाइन जॉइनिंग माइनस एम एंड एन एम, सोर्स एंड सिंक. लेट अस से दिस इज मेकिंग एन एंगल अल्फा विद एक्स एक्सिस. ठीक है, देन एट ए पॉइंट जेड, एंड लेट अस से कि ये जो डबलेट है दिस इज केप्ट एट पॉइंट जेड नो, देन दिस पॉइंट पी जिसका ही कोऑर्डिनेट जेड है, व्हाट विल बी द complex potential. Okay, so complex potential due to a doublet of strength mu with axis aligned at angle alpha from x axis is at point P, that will be given by mu divided by z minus z नोर हो जाएगा, बिकॉज हमने ओरिजिन लिया था, अभी z नोर है, सो यहाँ पे जो r है, अगर इफ दिस इज z नोर एंड दिस इज z, देन r विल बी मॉडुलस z माइनस z नोर. ओके, सो ये हो गया, और बिकॉज वी हैव बेसिकली एंटी क्लॉकवाइज इसको अल्फा डायरेक्शन से रोटेट कर दिया है. ठीक है, सो यहाँ पे जो है दिस विल बी मल्टीप्लाई बाई ई पावर आयोटा अल्फा, रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है, अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो रिजल्टेंट विल बी मल्टीप्लाई बाई ई रेज टू आयोटा अल्फा, सो दिस विल बी द इफेक्टिव कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल. ठीक है, सो ये एक जनरल केस हो गया. अब देखो इसमें इफ वी पुट अल्फा 0 एंड जेड नोर एज टेक एट 0 0 मींस ओरिजिन, देन विल गेट द दिस म्यू बाय जेड. सो ये हमें याद रहे तो अच्छा. ठीक है, सो बस इसमें थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट यही है. ठीक है, अब देखो let us do some questions based on this. ठीक है, so let us discuss this question. This has been asked in 2019. Okay, in fact very recently, 20 marks question and very simple in fact. Okay, so this is based on the concept we have just discussed. Okay, so let us try this question. Two sources each of strength m are placed at the points minus a comma 0 and a sink of strength 2m is placed at origin. Show that the streamlines are the curves where lambda is a variable parameter. Okay. Show also that the fluid speed at any point is 2ma square divided by r1, r2, r3,
where r1, r2, r3 are the distances of the point from the source sink respectively. Sources and sink. Okay, so very simple. Let us first draw a rough sketch of what this question is trying to convey. Okay, so what we have, let us say this is origin, let's say this is x-axis, this is y-axis. Okay, and this is minus a comma 0, this is a comma 0. Okay, so we are given that sources of strength m, sources of strength m. So strength of this sink is 2m, that is minus 2m, right? Strength of sink is 2m, so it will be minus 2m. Okay, I hope यहाँ तक clear है. So that the streamlines are these curves. Okay, so we have to write the complex potential for this. ठीक है, complex potential for the given arrangement of sources and sinks is, ये क्या होगा, minus, this is plus m here, right? Minus m log z minus z naught. So z minus z naught is a here, right? Again minus m log z minus z naught. See, z naught means the place where source or sink is kept. Okay, so for this is a comma 0, that means a plus iota 0 or simply a. Okay, let us say this is a, this is b and this is o. So at a, similarly at b क्या हो जाएगा, z naught will be minus a, right? And at o z naught will be 0. ठीक है, माइनस, बट यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है वो माइनस 2m है लोग. अच्छा, दिस इज प्लस हो जाएगा, ये माइनस ए है ना, log z minus 0. आई होप ये समझ में आता है. सो वी हैव w इज इक्वल टू माइनस m log z minus a minus m log z plus a plus 2m log z. This is the complex potential. ठीक है, due to these sources and sinks. Now this is very simple, in fact, just simple calculations. So if we club this is m log z minus a into z plus a, that is z square minus a square plus m log z square. We can take 2 inside, right? Or z is nothing, r e raised to iota theta. Z can be written as in this form. Let us say यहाँ पे कोई पॉइंट है z जिसपे कि we are seeing complex potential. ठीक है, so ये इस टाइप से होगा. Okay, so let us say this is r1, this is r2 and this is r3, because r3 is distance from the sink of the point. ठीक, अब देखो what we can do here. इसको और क्लब किया जा सकता है, m log माइनस एम log z स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइड बाई z स्क्वायर, ऐसा बोल सकते हैं. ठीक है, दिस इज द कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल, राइट? अब अगर इसको इस फॉर्म में ले जाए हम, पोलर फॉर्म में लिखा जाए, तो ये क्या आएगा, 1 minus a square divided by z square, that can be written as r square e की power iota 2 theta, right? Or we can write minus m log 1 minus a square by r square e की power minus iota 2 theta, that can be written as cos 2 theta minus iota sin 2 theta. I hope ये समझ में आता है. So w is minus m log, अब let us take real part together. So real part इसका क्या हो जाएगा, 1 minus a square cos 2 theta divided by r plus iota a square by r sin 2 theta, ऐसा लिखा जा सकता है. ठीक है, आई होप यहाँ तक कोई इश्यू नहीं है. दिस इज r square. Okay, this is iota, this is r square. Okay, because 1 has no dimension, so this term should also be dimensionless, so a square by r square. Okay, now
we know that log r या log z which can be written as log r e raised to iota theta is given by log r plus iota theta for principal value of theta ऐसा ठीक है और दिस इज नथिंग बट r क्या होती है रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सो हाफ log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा tan inverse y by x theta is y by x ठीक है these are the simple complex analysis concept right this is this is y this is x this is theta so tan theta is y by x and this is r so this is root x square plus y square so इसको if we put the values here यहाँ पे देखो if we compare this is log x plus iota y right so if we see x की जगह यहाँ पे ये है और y की जगह ये ठीक है so minus 1/2 log x square means 1 minus a square cos 2 theta divided by r square chi square plus a square by r square sin 2 theta chi square ये हो गया प्लस iota tan inverse y by x that is a square sin 2 theta divided by r square divided by 1 minus a square cos 2 theta divided by r square आई होप समझ में आता है हमें पूछा है स्ट्रीमलाइन राइट वी हैव बीन आस्क्ड स्ट्रीमलाइंस ठीक है अच्छा फर्दर वी नो दैट दिस इज w which can be written as phi plus iota psi complex potential is nothing but phi plus iota psi अगर we can calculate psi from here then psi equals to c will give the streamline so by comparison we can say that psi is nothing but imaginary part of this that is tan inverse a square sin 2 theta divided by r square minus a square cos 2 theta ठीक है इसको थोड़ा रेशनलाइज किया ठीक और इसको वी कैन से ये जो tan इनवर्स है ये इधर आके क्या हो जाएगा tan psi फॉर स्ट्रीमलाइन और इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन is given by psi equals to some constant or tan psi will be some constant c dash ठीक है if psi is constant tan psi will also be constant so इसका मतलब क्या हो गया कि so equation of streamline is a square sin 2 theta divided by r square minus a square cos 2 theta equals to some constant c let us call it c1 ठीक है c1 ठीक है बस अब हमें यही है दिस शुड बी द आंसर इसको एक्स वाई टर्म में ले जाना शायद हमें ओके एक्स वाई के टर्म में हमें लिखना ठीक है तो इसको अगर थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए तो देखो इस टाइप से हमारे पास ये है दिस इज थीटा दिस इज वाई एंड दिस इज एक्स ठीक है सो tan थीटा इज वाई बाई एक्स ओके and further we know that sin 2 theta is nothing but 2 tan theta 1 plus tan square theta okay and cos 2 theta is 1 minus tan square theta divided by 1 plus tan square theta these are the well known trigonometric formulas उनका यूज कर सकते हैं अगर वैसा नहीं करना तो इसको एक्सपांड कर दो 2 sin theta cos theta and cos square theta sin square theta फिर cos theta and sin theta की वैल्यू यहाँ से रख दो ठीक है तो अगर ये इसमें sin 2 थीटा की वैल्यू करेंगे तो ये क्या आएगा 2 tan theta is y by x divided by 1 plus tan square theta let us keep it as it is ठीक है r square minus a square cos 2 theta क्या आ जाएगा cos 2 theta is this 1 minus tan square theta that is y by x का whole square divided by 1 plus tan square theta ठीक है so 1 plus tan square theta means y by x का होल स्क्वायर यहाँ पे भी लिख देते हैं चलो y by x का होल स्क्वायर आई होप ये समझ में आता है 2a square y by x ओके द डिनोमिनेटर है इज 1 plus y square by x square ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा ठीक है इसको अगर क्लब किया जाए तो दिस इज r square 1 plus y by x या y square x square minus a square 1 minus y square by x square
दैट इज इक्वल टू सम C1। ठीक है, ये सिंपल रेशनलाइज किया हमने, इसको सिंप्लीफाई किया बेसिकली। ठीक है, आर स्क्वायर दिस एंड दैट, यस ठीक है। और इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई किया जाएगा, सो दिस इज 2a² y, r square can be written as x square प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ से भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बनेगा, तो दिस इज स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, राइट, माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से एक एक्स आ जाएगा यहाँ पे, दैट शुड बी इक्वल टू C1, राइट। और इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई किया जा सकता है, दिस इज 2a² xy डिवाइड बाई C1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ओके, अब हमें पूछा क्या है, उसी फॉर्म में हमें इसको ले जाना। ओके, ए स्क्वायर लेमडा एक्स वाई। ओके, सो इसको अगर रीअरेंज किया जाए, सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसको इधर ले जाया जाए, सो दिस इज ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर बाहर ले लिया 2xy/C1, ऐसा लिख सकते हैं। और इसको वी कैन राइट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस लेमडा टाइम्स एक्स वाई, वेयर लेमडा इज 2/C1। So lambda is a variable parameter in fact, okay, or arbitrary constant. So this is the equation of streamline and proof, ठीक है। ओके, अब इसका सेकंड पार्ट भी है, ठीक है। व्हाट इज सेकंड पार्ट? सेकंड पार्ट इज show that the fluid speed at any point is 2ma square divided by r1 r2 and r3। this is more of easy part in fact, okay। हमारे पास जो है w क्या आया था, w is this is w, तो यहीं से हो जाएगा वेलोसिटी, तो w इज माइनस m log z माइनस a प्लस 2m log z माइनस m log z प्लस a, दैट इज द कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल, ठीक है। नाउ इफ वी डिफरेंशिएट this with respect to z, dw over dz, that will be minus m z minus a plus 2m log z का 1/z minus m log z plus 1 is, ठीक है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए, इफ वी टेक z minus a z plus a as common denominator, so this m can be taken out, right, so this will be minus z plus a plus z minus a into z plus a twice minus z into z minus a, right। आई होप ये समझ में आता है। ओके, अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई किया जाएगा, तो दिस इज माइनस जेड स्क्वायर, यहाँ पे भी माइनस जेड स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर, सो दैट इज गॉन माइनस ए जेड and this is minus a square and plus az, so this will also cancel, these terms will also cancel each other, okay। और यहाँ पे क्या है, z टाइम्स z माइनस a z प्लस a is in fact minus 2a square, because यहाँ पे 2 टाइम्स माइनस a प्लस a, ठीक है। so this is dw over dz, okay। so velocity is given by modulus of dw over dz, right, so the answer will be modulus of this, that is twice ma square, okay, divided by modulus of z minus a modulus of z plus a, okay। now we know कि यहाँ पे a, this is a, this is b and this is o and this is some point p, जहाँ पे कि ये निकाला गया है कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल एंड वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड फ्लो। सो इसको अगर ज्वाइन किया जाए, दिस पॉइंट इज a,0, दिस इज 0,0 एंड दिस इज माइनस a,0, ठीक है। तो ये जो लेंथ होगी ये क्या होगी, ये पॉइंट z है, सो दिस लेंथ pb विल बी मॉडुलस z प्लस a, इसको r1 बोला गया है, इसको r2, एंड दिस सिंक से जो डिस्टेंस है उसको r3 बोला है, ओके। सो सिमिलरली जो दिस इज r1, ऐसे r2 क्या है, r2 इज मॉडुलस z माइनस a एंड r3 इज
z माइनस जीरो का मॉडुलस z, तो इसको वी कैन राइट मॉडुलस 2ma स्क्वायर डिवाइड बाई r3 r1 r2, so this will be the velocity of fluid flow at a general point p. ठीक है, आई होप समझ में आता है, hence proof. So these were the easy 20 marks in fact, simple process था. ठीक है, कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल लिखना था, वेलोसिटी क्या होती है डी डब्ल्यू और डी जेड का मॉडुलस, तो उससे सेकंड पार्ट इनफेक्ट ज़्यादा इजी था. फर्स्ट पार्ट में स्ट्रीम लाइन पूछी थी, थोड़ी कैलकुलेशन थी बस, उसमें क्या था कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल लिख दिया, उसके बाद 5 प्लस आयोटा साई होता है कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल, तो साई से जो भी पार्ट है उसको कंपेयर किया और साई इक्वल्स टू सी विल गिव और स्ट्रीम लाइंस. ओके, सो इट्स वाज वेरी इजी क्वेश्चन इन फैक्ट. ओके, सो आई होप समझ में आता है. सो लेट अस टेक सम मोर क्वेश्चंस. What arrangement of sources and sinks will give rise to the function? Function basically this is complex potential. Means what arrangement of source and sink will give rise to this complex potential? Find velocity of flow in terms of radii of the point. Okay, this point where we are seeing the complex potential in terms of the radii of that. Basically the distance of that point from the सोर्सेज एंड सिंक्स, जो भी इससे ये जो पोटेंशियल मिल रहा है उसके टर्म्स में. ठीक है, ओके, सो लेट अस डील विद दिस क्वेश्चन. सो वेरी इजी क्वेश्चन इन फैक्ट. ओके, ओके, we have complex potential as log z power 4 minus a power 4 divided by z. So this can be written as log, okay, this is z power 4, this can be factorized as z square minus a square and z square plus a square, ऐसे फैक्टराइज कर सकते हैं. ठीक है, डिवाइड बाई z, और इसको हम लोग ऐसे दिस कैन अगेन भी फैक्टराइज, जैसे z माइनस ए एंड z प्लस ए, और इसको भी फैक्टराइज कर सकते हैं. z स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, z माइनस ए आयोटा, z स्क्वायर माइनस ए आयोटा का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं. तो दिस इज z माइनस ए आयोटा, ए प्लस बी वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा दो. ठीक है, डिवाइड बाई z. ओके, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया जाए तो log z माइनस ए प्लस log z प्लस ए प्लस log z माइनस ए आयोटा प्लस log z प्लस ए आयोटा. ओके, माइनस log z, इसको वी कैन राइट z माइनस जीरो. ओके, सो दिस इज द कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल. सो नाउ वी नो, ठीक है, वी नो that complex potential due to a source of strength m kept at z naught is given by minus m log z minus z naught. Okay, so by that analogy what we can say कि लेट अस से कि हमारा एक्स एंड वाई प्लेन है, ऑब्वियसली टू डिमेंशन की बात हो रही है. जब हमें कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल जो है जेड के टर्म में गिवन है, तो ऑब्वियसली टू डिमेंशन ही होगा, जेड इज एक्स प्लस आयोटा वाई, थ्री डिमेंशन की तो बात ही नहीं हो सकती इसमें. ठीक है, सो नाउ अब इसका क्या मतलब हुआ, देखो इसका मतलब हो गया कि इससे अगर कंपेयर किया जाए तो यहाँ पे देखो इसका जो एम है वो -1 है और जेड नोर वो है a,0. ठीक है, तो इसका मतलब ये मान लो कोई ए पॉइंट है जिसके की कोऑर्डिनेट a,0 है. ठीक है, ओके, सिमिलरली यहाँ पे ये -a,0 है, तो दिस इज लेट अस से दिस इज -a,0, इसको बोल देते हैं b. ये a आयोटा, जेड नोर क्या है, जेड नोर यहाँ पे है a आयोटा, a आयोटा मतलब क्या हो गया 0,a. बेसिकली रियल पार्ट 0 है, इमेजिनरी पार्ट a है, सो दिस पॉइंट विल बी समवेयर हियर 0,a. लेट अस से दिस इज c. ठीक है, ये क्या है माइनस ए आयोटा मीन्स 0,-a, दिस विल बी समवेयर हियर, लेट अस कॉल दिस d. ठीक है, और ये क्या है, दिस इज जेड नोर इज 0 हियर, तो दिस इज ओरिजिन. ठीक है, सो ये इसको लेट अस कॉल e, दिस इज ओरिजिन. ओके,
अब ये देखना है, देखो इसमें क्योंकि यहाँ पे माइनस एम की जगह प्लस वन है, मीन्स एम इज माइनस वन, सो देयर इज ए सिंक। इनफैक्ट यहाँ पे माइनस वन है, यहाँ पे माइनस वन हो जाएगा एम की वैल्यू, यहाँ पे भी एम की वैल्यू माइनस वन है। सो वी व्हाट वी कैन से कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे सिंक है, यहाँ पर भी सिंक है, यहाँ पर भी सिंक है, और यहाँ पे भी सिंक है। पर देखो यहाँ माइनस log z है, सो यहाँ पे m पॉजिटिव है, सो यहाँ पे सोर्स है। सो व्हाट वी कैन से दैट 8 पॉइंट a comma b comma c comma d sources, not sources, sink of strength -1 r cap, okay. 8 point e source of strength 1 is kept, ठीक है। So these are the arrangement which will give rise to this complex potential. So first part is done. Second part में हमें क्या पूछा है, velocity I think. Second part में हमें क्या पूछा, find velocity of flow. Okay. So velocity तो simple है, velocity of fluid flow is given by dw over dz modulus. Okay. So यहाँ w is log z4 minus a4 divided by z. So dw over dz क्या होगा, तो बेसिकली जो हमने इसको फैक्टराइज किया उसी फॉर्म में लिख सकते हैं। बेसिकली दिस इज log z प्लस ए प्लस log z माइनस ए प्लस log z प्लस ए आयोटा प्लस log z माइनस ए आयोटा माइनस log z। तो डी डब्ल्यू और डी जेड क्या होगा, 1 डिवाइड बाई जेड प्लस ए प्लस 1 डिवाइड बाई जेड माइनस ए प्लस 1 डिवाइड बाई जेड प्लस ए आयोटा प्लस 1 डिवाइड बाई जेड माइनस ए आयोटा माइनस 1 बाई जेड। ठीक है, ये हो गया। तो बस ये हम लोग इसको फैक्टराइज करके ऐसा इसलिए कर रहे हैं बिकॉज हमें जो है, जो इनका जो भी अरेंजमेंट है उसकी पॉइंट से जो डिस्टेंस है उसके टर्म में पूछा गया है। जैसे ये Z1 है, इसको Z है, तो Z माइनस Z1 को वी कैन कॉल सम डिस्टेंस R को, तो इससे डायरेक्ट वी कैन राइट दैट। अब देखो इसमें क्या, अगर इन दोनों को क्लब किया जाए तो दिस इज Z स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, if we add both then this is 2Z, right? Similarly if we club them तो this is Z square minus प्लस ए स्क्वायर इनफैक्ट। सो अगर हम को भी क्लब करेंगे तो 2Z, ठीक है, एंड दिस इज माइनस 1 बाई Z। ओके, अच्छा फर्दर इनको क्लब किया जा सकता है। अच्छा इसको तो डायरेक्टली भी हम कर सकते थे, देखो कैसे। जो W था वो हमारे पास log Z पावर 4 माइनस A4 बाई Z था, उसको माइनस log Z लिख सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट का जो डिफ्रेंसिएशन होगा वो क्या हो जाएगा, Z4 माइनस A4 डिवाइड एंड इसका डिफरेंशियल 4Z क्यूब माइनस 1 बाई Z, ऐसा लिख सकते हैं इसको। और इसको और अगर क्लब किया जाए Z4 माइनस A4, दिस इज 4Z4 माइनस Z4 प्लस A की पावर 4, सो दिस कैन बी रिटन एज 3Z पावर 4 प्लस A पावर 4 डिवाइड बाई Z4 माइनस A4, दिस इज dw ओवर dz। अगर इसका मॉडुलस लेंगे तो इधर से भी मॉडुलस लेना पड़ेगा। ठीक है, देखो इसको वी कैन राइट 3Z4 प्लस A4 का मॉडुलस डिवाइड बाई Z माइनस A, Z प्लस A, Z प्लस ए आयोटा, Z माइनस ए आयोटा, इन सब का मॉडुलस। ठीक है, सबका मॉडुलस वी कैन डू बिकॉज मॉडुलस Z1 Z2 इज नथिंग बट मॉडुलस Z1 मॉडुलस Z2, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन आया था वो इस टाइप था, एक यहाँ पे था सिंक, यहाँ पे एक सिंक था, यहाँ पे एक सिंक था, एक यहाँ पे सिंक था। तो लेट अस से ये कोई पॉइंट Z है जहाँ पे वी आर सीइंग दिस कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल। तो अगर ये डिस्टेंस मान लो दिस इज R1, लेट अस से दिस इज R2, दिस इज R3, दिस इज R4, यहाँ पे एक सिंक था, लेट अस कॉल दिस इज R5। तो इसको व्हाट वी कैन राइट, मॉडुलस ऑफ 3Z4 प्लस A4 डिवाइड बाई R1, R2, R3, R4 एंड R5, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मॉडुलस भी है, सो दिस विल बी आवर वेलोसिटी। ठीक है, सो इनफैक्ट ये जो न्यूमरेटर है उसको हमें इसी टर्म में रखना पड़ेगा। ठीक,
तो आई होप ये समझ में आता है. So let us do one more question based on this concept. Okay, an infinite fluid mass with irrotational motion and steady flow is under influence of a source of strength m and sink of strength minus m. The distance between these two is b. Let us take this for b. Okay, if kinetic energy of fluid flow passing per unit time across plane of fluid which is perpendicular to the line joining the source and sink and is at the midpoint of it is given by this. Kinetic energy is given by this. Rho is of course density of fluid. Then we are asked to find the value of theta. So basically हमें जो पर यूनिट टाइम में काइनेटिक एनर्जी पास हो रही है इस प्लेन से वो फाइंड करनी है. ठीक है. ओके, तो ऐसा कुछ है कि यहाँ पे लेट अस से मान लो यहाँ पे कोई सोर्स m है, यहाँ पे कोई सिंक माइनस m है, इनके बीच की डिस्टेंस 4b गिवन है. ओके, सो लेट अस टेक ये कोई ओरिजिन. अच्छा, इसके मिड पॉइंट पे कोई एक प्लेन है, इसके मिड पॉइंट पे ऐसे कोई प्लेन है. ठीक है, इसके थ्रू देखो इससे जो भी फ्लो हो रहा होगा इसकी वजह से फ्लो रेडियल डायरेक्शन में हो रहा होगा. तो मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया हमने पी जेड. अच्छा, इसमें ये हमें नहीं बोला गया है कि ये 2 डिमेंशनल है. ठीक है, तो यहाँ कोई भी पॉइंट पी ले लिया हमने, तो इसका मतलब ये 3 डिमेंशनल फ्लो जो हो रहा है 3 डिमेंशन में हो रहा है. ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे अगर यहाँ से ये इसको देखा जाए तो इस टाइप से फ्लो हो रहा होगा. ठीक है, ये सोर्स ये सिंक है तो इसमें तो कंज्यूम हो रहा होगा फ्लूइड, तो इससे जो डायरेक्शन होगी फ्लो की वो इस टाइप कुछ होगी. ठीक है, और ये पॉइंट जो है मान लो ये -2b, 0 है, ये एक्स एक्सिस ले लेते हैं. देन दिस विल बी 2b, 0 एंड दिस विल बी 0, 0 बिकॉज टोटल लेंथ 4b है, ऐसा हम इसको एज्यूम कर सकते हैं. अब हमें पूछा जा रहा है कि ये जो प्लेन है इसके थ्रू पर यूनिट टाइम में कितना फ्लूइड पास हो रहा है बेसिकली. सो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या होगी, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन तो यही होगी एक्स एक्सिस. ठीक है, तो बेसिकली इस डायरेक्शन में जो भी वेलोसिटी होगी लेट अस से कि वो क्यू एन है. तो जो क्यू एन है उसकी वजह से जो फ्लक्स है या उससे जो भी इस डायरेक्शन की वजह से जो भी काइनेटिक एनर्जी आएगी दैट विल बी आवर आंसर. ठीक है, तो अब इसमें देखो जो हमने एनर्जी थ्योरम का कॉन्सेप्ट यूज़ किया आई थिंक 13th या 14th लेक्चर में मैंने डिस्कस किया फ्लूइड फ्लो में, उसका भी यूज़ होगा. ठीक है, एंड सोर्स एंड सिंक का यूज़ तो है ही. तो पहले तो विल सी. अब देखो बिकॉज ये 3 डिमेंशनल में हो रहा है. ओके, सो दिस इज इन 3 डिमेंशनल, दिस फ्लो इज 3 डिमेंशनल. ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन 2016 में भी पूछा हुआ है. ठीक है, थोड़ा डिफरेंट है बट कॉन्सेप्ट यही है उसमें भी. ठीक है, सो सी velocity of fluid flow at P due to source, इसको let us say A and this B at A. इसकी वजह से वेलोसिटी क्या होगी 3 डिमेंशनल में, ये हमने देखा था, दिस वी डिस्कस्ड दैट इन 3 डिमेंशनल अगर सोर्स है तो 3 डिमेंशनल फ्लो में जो वेलोसिटी होती है क्यू आर, रेडियल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होती है वो m/r² होती है. इफ स्ट्रेंथ ऑफ source and sink is m यहाँ पे. हाँ, ठीक है, if strength of source is m then qr is m/r². सिंपल सा है, तो 4 pi m is equals to 4 pi r² into qr, ऐसे किया था हमने. ठीक है, सो qr आ जाती थी m/r². दिस इज इन रेडियल डायरेक्शन. ओके, सो आई होप ये समझ में आता है. सो इसकी वजह से यहाँ पे जो फ्लूइड फ्लो होगा उसकी जो वेलोसिटी होगी वो m/r² होगी इस डायरेक्शन में. तो सिमिलरली सिंक की वजह से क्या होगी इस डायरेक्शन में m/r² होगी इस डायरेक्शन में. ठीक है, तो लेट अस से कि ये एंगल थीटा है. ठीक है, तो अगर x डायरेक्शन में देखा जाए, x डायरेक्शन वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, क्योंकि हमें इस प्लेन के थ्रू जो पर यूनिट टाइम में पास हो रही है काइनेटिक एनर्जी वो पूछी है. तो परपेंडिकुलर टू प्लेन जो पास हो रही है मींस इन द डायरेक्शन ऑफ x, एक्सिस ऑफ x इज नॉर्मल टू दिस प्लेन. ठीक है, तो x डायरेक्शन में क्या होगी वेलोसिटी m/r² cos थीटा. ठीक है, और इसकी वजह से भी वही होगी, दिस इज थीटा, दिस विल आल्सो बी थीटा. ठीक है, बिकॉज ये जो लेंथ है दिस इज 2b एंड दिस इज आल्सो 2b. ठीक है, तो इसको भी ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं. सो दिस विल बी ट्वाइस m/r².
सो दिस इज क्यू एन, ठीक है। अब देखो अगर लेट अस से कि ये जो डिस्टेंस है, ये पॉइंट हमने जो भी पॉइंट 3D में मान लिया, ये मान लो ये जो बेसिकली यहाँ पे एक सर्कल टाइप बनेगा। देखो अगर ये कोई सर्कुलर यहाँ पे एक शेप ली जाए, इसकी रेडियस लेट अस से जेड वाई है, चलो लेट्स कॉल दिस वाई, ठीक है। तो इसमें देखो अगर ये थीटा है तो कोस थीटा क्या होगा, कोस थीटा विल बी दिस इज 2b डिवाइड बाय this length let us call this for time being let us call this r, so this is 2b by r, ठीक है। हाँ वैसे भी वी आर राइटिंग द वेलोसिटी रेडियल डायरेक्शन में जो r के टर्म में लिख रहे हैं, so this r is pa और obviously pb भी सेम ही होगी, ठीक है। तो इससे if 2m by r square cos theta is 2b by r, so this is 4mb divided by r की पावर 3, ठीक है। ये हो गया क्यू एन, दिस इज द वैल्यू ऑफ क्यू एन, ठीक है। अब देखो अब इसमें क्या कर सकते हैं हम, हमारे पास जो ये प्लेन है इस टाइप से प्लेन है, ये है, मान लो ये हमने यहाँ पे पॉइंट लिया है, ठीक है। तो अगर ये इस टाइप से एक एलिमेंट लिया सा है, मान लो हमने ये यहाँ पे एक एलिमेंट ले लिया, यहाँ पे एक एलिमेंट ले लिया डी एक्स डी वाई, ठीक है। इसको वैसे जेड चलो वाई बोल देंगे इसको, तो डी एक्स डी वाई एलिमेंट लिया। अब इसको अगर इस एक्सिस के अराउंड रिवोल्व करेंगे, जैसा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हमने किया था, अगर इसके अराउंड ऐसे रिवोल्व करें तो एक रिंग बनेगी, ठीक है। ये मान लो वाई है, ठीक है। तो इसकी जो बेसिकली सरकमफ्रेंस की लेंथ क्या हो जाएगी 2πy इंटू ये जो एरिया बेसिकली एरिया है ये डी एक्स इंटू डी वाई है, सो दिस विल बी द डी वी। ये जो रिंग है इसका जो वॉल्यूम होगा इस एलिमेंट का वो क्या हो जाएगा, एरिया इंटू सरकमफ्रेंस की लेंथ। अगर इसको ओपन किया जाए तो इस टाइप ओपन होगा ना ये, ठीक है। तो इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये तो डी एक्स डी वाई है, और ये जो लेंथ है ये क्या होगी 2πy होगी। सो इसका जो वॉल्यूम होगा 2πy डी एक्स डी वाई, सो दैट इज डी वी, ठीक है। और लेट अस से कि ये y है, हमने यही y ही बोला है, इफ दिस इज y एंड दैट वाज डी एक्स डी वाई, ठीक है। तो दैट्स इट। अब देखो अब हम क्या कर सकते हैं इसको, अच्छा हमें चाहिए काइनेटिक एनर्जी, ओके। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी वी नो दैट दिस इज 1/2 रो डी वी डी एम इंटू वी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, बेसिकली अक्रॉस दिस, तो ये क्यू एन स्क्वायर, ये क्यू एन एज्यूम किया हमने, ठीक है। बस इसकी वैल्यू हमें चाहिए, पर हमें काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट टाइम जो पास हो रही है वो पूछा गया है, पर यूनिट टाइम मीन्स यहाँ पे जो है अगर इसमें देखो 1/2 रो डी वी क्या है 2πy डी एक्स डी वाई, ठीक है, इंटू क्यू एन स्क्वायर। पर यूनिट टाइम इज डी एक्स, पर यूनिट टाइम इज डी ओवर डी टी, बेसिकली डी के ओवर डी टी, उसका ओवरऑल इंटीग्रेशन हमें चाहिए। सो देखो डी एक्स ओवर डी टी क्या होगा, ये डायरेक्शन हमने एक्स बोली है और इसी डायरेक्शन में फ्लो है, सो क्यू एन इज नथिंग बट डी एक्स ओवर डी टी ओनली, ठीक है। सो इसको व्हाट वी कैन राइट, दिस विल बी 1/2 रो 2πy, दिस विल बिकम क्यू एन, सो क्यू एन हो गया क्यू डी वाई, ठीक है। एंड y विल वेरी फ्रॉम जीरो से इन्फिनिटी, भाई यहाँ y जो है जीरो से इन्फिनिटी तक जाएगा। बस ये इंटीग्रेशन विल गिव और सॉल्यूशन। आई होप ये समझ में आया, ठीक है। बस इसमें देखो यहाँ पे सोर्स है, ये सिंक है, तो इसकी वजह से रेडियल डायरेक्शन में जो फ्लो होगा वो m/r स्क्वायर होगा, जो वेलोसिटी होगी, और सिंक के टुवर्ड्स होगी m/r स्क्वायर। सो रिजल्टेंट जो क्यू एन होगी वो ट्वाइस, बिकॉज m r स्क्वायर कोस थीटा इसकी वजह से और m r स्क्वायर कोस थीटा इसकी वजह से, तो 2 टाइम्स m/r स्क्वायर कोस थीटा, और कोस थीटा की वैल्यू इस डायग्राम से वी कैन सी दिस इज y, ओके। अब क्या किया हमने, ये तो हमने कोस थीटा, सो क्यू एन आ गया हमारे पास, दिस इज क्यू एन। और फिर काइनेटिक एनर्जी वही है 1/2 रो डी वी इंटू क्यू स्क्वायर, क्यू मीन्स क्यू एन स्क्वायर अक्रॉस दिस, ठीक है। तो यहाँ पे डी वी भी हमने निकाला, डी वी क्या किया हमने, एक डी एक्स डी वाई एलिमेंट लिया यहाँ पे, ठीक है, और उसको रिवोल्व किया रिवोल्यूशन मेथड जैसा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हम करते थे, ठीक है। पर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट टाइम पूछा गया है, सो डी के और डी टी करेंगे तो डी एक्स और डी टी विल बी क्यू एन अगेन, ठीक है। तो बस अब तो सिंपल है यहाँ तक बस कॉन्सेप्ट था। सो द काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट टाइम ये क्या आ जाएगी 1/2 रो 2 पाई, चलो बाहर आ गया,
1/2 रो times dv, so 2 pi y dx dy, so dx by dt तो हो गया था क्यूब में, so q n क्यूब into dy, यही था हमारे पास, राइट. Kinetic energy was this, right? Rho times 2 pi y, 2 pi means pi rho y, q n cube dy, ठीक है. So this is, and y varies from 0 से infinity, so this is rho times pi 0 से infinity y times qn, qn की वैल्यू रख देते हैं इसमें. qn की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, qn की वैल्यू या 4 mb डिवाइड बाई आर क्यूब. अच्छा देखो इसमें आर क्यूब जो है ये लेंथ 2b है, यहाँ तक 2b है, सो आर स्क्वायर इज 4b² प्लस वाई स्क्वायर. राइट एंगल ट्राइंगल से ये बोल सकते हैं, ठीक है. सो 4 mb बाई आर क्यूब, दिस इज 4 mb बाई आर क्यूब डी वाई, एंड जो आर स्क्वायर है वो क्या है 4b² प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है. सो दिस इज रो पाई 0 से इंफिनिटी. ओके 4 mb तो कांस्टेंट है, सो इसको ले लेते हैं बाहर, राइट. नहीं, दिस इज क्यूब, राइट. ये तो क्यूब क्यू एन की वैल्यू इस पे क्यूब है, तो 4 mb का क्यूब आ गया बाहर, ओके. और हमारे पास रह गया y डिवाइड बाई आर की पावर 9, आर की पावर 9, सो डिवाइड, तो ये जो है इसको लेट अस से सम कांस्टेंट a 0 से इंफिनिटी y dy डिवाइड बाई आर क्या है 4b² वाई स्क्वायर की पावर का रूट, so 9/2. Okay, now let 4b² plus y square is take it as t square, then y dy will be t dt. तो ये जो हमारा इंटीग्रेशन है क्या हो जाएगा. अच्छा जब ये जीरो करेंगे, y जीरो करेंगे तो t क्या होगा 2b, इन्फिनिटी विद इन्फिनिटी रहेगा. y dy कैन बी रिटन एज t dt, and this is t square, this is t की पावर 9. Okay, so this is a times 2b to infinity dt over t की पावर 8, और this can be written a times t की पावर -8 plus 1 डिवाइड बाई 2b से इन्फिनिटी तक. so this is -a/7 0 -1/2b की पावर 7, राइट. सिंपल लिमिट पुट कर दी हमने, ठीक है. अब देखो एक a क्या है, a इज 4 mb पावर t रो पाई डिवाइड बाई 7, एंड दिस इज डिवाइड बाई माइनस माइनस तो प्लस हो गया 2b की पावर 7. बस अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया जाए, दिस इज प्लस, सो दैट विल बी आवर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट टाइम. यहाँ पे पर यूनिट टाइम इज इम्पोर्टेंट, ठीक है. उसकी वजह से ही क्यू का एक टर्म बढ़ गया, ठीक है. तो अब देखो इसमें 4 क्यूब डिवाइड बाई 2 की पावर 7, बी क्यूब डिवाइड बाई बी की पावर 4 रो टाइम्स पाई डिवाइड बाई 7, है ना. ओके, सो दिस इज 2 स्क्वायर 2 की पावर 6 हो गया ये. सो दिस इज रो पाई, यहाँ से एक 2 बच गया 7 14 बी की पावर 4, राइट. सो दिस विल बी द काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट टाइम. हमें एक्सप्रेशन क्या दिया है, वी आर गिवन रो पाई रो एम क्यूब थीटा बी की पावर 4, एम क्यूब था यहाँ पे, चलो एम क्यूब होना चाहिए था, यस एम क्यूब इज देयर, दिस इज एम क्यूब, so m cube will be there throughout, ठीक है. so this is kinetic energy per unit time. so if we compare this by rho pi m cube theta b की power 4, so we can say that theta is 40. this is our answer. so this is a good conceptual question, ठीक है. so that's it, ठीक है. now we'll see next images concept, वो भी important है images. उसमें बस इमेज का जो कॉन्सेप्ट है वो उसका एडिशन होगा, और सारे कॉन्सेप्ट ये यूज होंगे, कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल होगा, ओके.